ایکسپلور فیکٹ کے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے نواب شہر بہاولپور اور وہاں کے نوابوں کے بارے میں دلچسپ اور تاریخی فیکٹس بتائیں گے جو آپ پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل ایکسپلور فیکٹ کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیں۔ ناظرین گرامی، ریاست بہاولپور کی بنیاد 1727 میں نواب صادق محمد خان عباسی اول نے رکھی اور تحصیل لیاقت پور کا قصبہ اللہ آباد اس کا پہلا دارالحکومت قرار پایا۔ قبل ازیں 1258 میں مشہور تاتاری فاتح چنگیز خان کے بیٹے ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے بعد عباسی شہزادوں نے سندھ کا رخ کیا تھا۔ امیر چنی خان عباسی کو اکبر اعظم کے بیٹے سے پنج ہزاری کا منصب ملا تو اسے اوباڑوں سے لاہوری بندر تک کا خطہ اجارے پر دے دیا گیا۔ بعد ازاں امیر چنی خان کی اولاد میں مہدی خان اور داؤد خان کے خاندانوں میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا تو مقامی قبائل نے مہدی خان کی نسل کا جو کلہوڑے کہلاتے تھے اور صدیوں سندھ پر حکمرانی کی بھرپور ساتھ دیا، جبکہ عرب قبائل نے داؤد خان کا ساتھ دیا جو داؤد پوتا عباسی کہلاتے تھے۔ واضح رہے کہ ریاست بہاولپور کے بانی نواب صادق محمد خان عباسی اول امیر داؤد خان کی 13ویں پشت سے تھے۔ عباسی داؤد پوتوں نے صادق آباد، خانپور، منچن آباد، شہر فرید، اوج سمیت ریاست جیسلمیر اور بیکانیر کلہوڑوں سے چھین کر فتح حاصل کی اور موجودہ ریاست بہاولپور کی بنیاد رکھی۔ نواب صادق محمد خان عباسی اول نے 1739 میں نادر شاہ درانی سے نواب کا خطاب حاصل کیا۔ اس طرح اس کی حکمرانی موجودہ ریاست بہاولپور کے علاوہ شکارپور، لاڑکانہ، سیوستان، چتار وغیرہ کے علاقوں تک قائم ہو گئی۔ نواب صادق محمد خان عباسی کے صاحبزادے نواب بہاول خان عباسی اول نے 1774 میں دریائے ستلج کے جنوب میں ایک نئے شہر بہاولپور کی بنیاد رکھی۔ نواب سر صادق محمد خان خامس عباسی 23 ستمبر 1904 کو پیدا ہوئے۔ وہ نواب حاجی محمد بہاول خان خامس عباسی کے اکلوتے فرزند تھے۔ جب وہ 2 برس کے تھے تو والد کے ساتھ سفر حج پر گئے، لیکن واپسی پر دوران سفر ان کے والد نواب بہاول خان کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد 15 مئی 1907 کو سر صادق کو ریاست کا حکمران مقرر کرنے کا اعلان کر دیا گیا، مگر نواب صادق محمد خان بہت کم سن تھے، لہٰذا ان کی تعلیم و تربیت اور ریاست کے انتظام و انصرام کے لیے حکومت برطانیہ نے ICC آفیسر سر رحیم بخش کی سربراہی میں کونسل آف ریجنسی قائم کر دی۔ نواب صاحب نے ابتدائی تعلیم اس وقت کی نامور علمی شخصیت علامہ مولوی غلام حسین قریشی سے حاصل کی۔ 3 برس کی عمر میں تخت نشین ہونے والے شہزادے کی شخصیت کے نکھار کے لیے انہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ مذہبی اور اعلیٰ انتظامی و عسکری تربیت بھی دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ 1911 میں وہ صرف 7 برس کی عمر میں فوج کی کمان کرتے ہوئے شہنشاہ برطانیہ جارج پنجم کے سامنے پیش ہوئے۔ ریاست بہاولپور میں صادق گڑھ پیلس اور صادق ایجرٹن کالج کی لائبریریز نادر و نایاب کتب کے حوالے سے مشہور ہیں۔ سر صادق دنیا بھر سے اہم کتب کے 3 نسخے منگواتے اور ایک نسخہ صادق ریڈنگ لائبریری، دوسرا صادق گڑھ پیلس اور تیسرا صادق ایجرٹن کالج کی لائبریری میں رکھا جاتا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ریاست بہاولپور میں علم و ادب کی کس قدر سرپرستی کی جاتی تھی۔ نواب صاحب مرحوم اور ان کے پیشروؤں نے ہمیشہ تعلیم کی ترویج کے لیے اقدامات کیے۔ نواب سر صادق نے 1925 میں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ دینی مدرسے صدر دینیات کو ترقی دے کر جامعہ الازہر کی طرز پر جامعہ عباسیہ قائم کیا۔ یہ پورے برصغیر میں اپنی نوعیت کا واحد ادارہ تھا جہاں طلباء مختلف مکاتب فکر کے علماء و اساتذہ سے اکتساب فیض کرتے۔ جامعہ عباسیہ میں دینی و مشرقی علوم کے ساتھ ساتھ ریاضی، انگریزی اور سائنس کی بھی تعلیم دی جاتی۔ اس کے علاوہ طب یونانی کی تعلیم کے لیے 1926 میں جامعہ عباسیہ کا ذیلی ادارہ طبیہ کالج قائم کیا گیا، جو آج بھی پنجاب کا واحد سرکاری طبیہ کالج ہے۔ نواب سر صادق مرحوم کا سب سے بڑا کارنامہ ایچیسن کالج کی طرز پر 1954 میں صادق پبلک اسکول جیسے اعلیٰ معیاری ادارے کا قیام ہے۔ مذکورہ ادارے کے لیے نواب صاحب نے اپنی 450 ایکڑ ذاتی زمین دینے کے علاوہ تعمیر کی مد میں مطلوبہ فنڈز بھی فراہم کیے۔ قبل ازیں قیام پاکستان سے پہلے 1928 میں ستلج ویلی کی پروجیکٹ کا بھی افتتاح کیا، جس کے تحت دریائے ستلج پر 3 ہیڈ ورکس سلیمان کی، ہیڈ اسلام اور ہیڈ پنجدن تعمیر کر کے پوری ریاست میں نہروں کا جال بچھا کر غیر آباد زمینوں کی آبادکاری کے لیے مختلف علاقوں سے آبادکاروں کو ریاست میں آباد ہونے کی ترغیب دی گئی۔ نئی منڈیاں قائم کر کے ہارون آباد، فورٹ عباس، حاصل پور، چشتیاں، یزمان، لیاقت پور اور صادق آباد جیسے شہر بسائے گئے۔ یہیں سے نواب سر صادق اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان
लाजवाल दोस्ती का रिश्ता भी कायम हुआ। रियासत के उस वक्त के वजीर आजम सर सिकंदर हयात ने जब रियासत के खिलाफ दरपर्दा साजिश का आगाज किया तो रियासत के उस वक्त के वजीर दाखिला और नवाब मरहूम के अताली मौलवी गुलाम हुसैन कुरैशी मरहूम ने इस साजिश को बेनकाब किया और नवाब मरहूम को अपने कानूनी मशीर से मशवरा लेने को कहा। इस मुकदमे की पैरवी उस वक्त के रियासत के कानूनी मशीर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने की और मुकदमे का फैसला बहावलपुर के हक में हुआ। 1930 में सर सादिक ने रियासत कपूरथला में जामिया मस्जिद तामीर करवाई और महाराजा कपूरथला की फरमाइश पर खुद इसका इफ्तिताह किया। 3 दिसंबर 1930 को सर राज मसूद की दावत पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के सालाना कन्वोकेशन की सदारत की और 1 लाख रुपए की खतीर रकम बतौर अतिया दी। 1908 में नदवतुल उलमा लखनऊ के नवाब साहब की वालिदा मोहतरमा की तरफ से दी जाने वाली 50,000 रुपए की माली मदद के जवाब में अल्लामा शिबली नोमानी ने शुक्रिया का खत तहरीर किया जो मुहाफिज खाना बहावलपुर में महफूज है। पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस का सेनेट हॉल जहां इस वक्त यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कायम है, सर सादिकी ने तामीर करवाया। इमारत की पेशानी पर नवाब साहब की नाम की तख्ती आज भी मौजूद है। इसी तरह किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज बहावलपुर ब्लॉक और एचएसएन कॉलेज का बोर्डिंग हाउस नवाब सर सादिकी की यादगारें हैं। 27 फरवरी 1934 को नवाब साहब की तालीमी खिदमात के इतराफ में रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर वुल्स ने बतौर खास बहावलपुर आकर सादिकगढ़ पैलेस में मुनक्किदा तकरीब में उन्हें LLD की एजाजी डिग्री तफवीज की। 1935 में ज़लज़ला ज़दगान के लिए एक अमदादी ट्रेन कोयटा रवाना की और इसी साल फ्रीज़े हज की अदायगी के लिए तकरीबन 100 अफराद को अपने साथ लेकर गए। सामान के लिए जो फौजी गाड़ियां और मोटरकारें बहरी जहाज पर साथ ले गए सब सऊदी हुकूमत को बतौर तोहफा दे दी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कीमती फानूस लगवाए और इसी साल जुलाई में जामिया मस्जिद दिल्ली की तर्ज पर जामिया मस्जिद अस-सादिक की असर नौ तामीर का संगे बुनियाद रखा गया, जिसका शुमार इस वक्त पाकिस्तान की चौथी बड़ी मस्जिद में होता है। रियासत में माहिरीन इल्म फन, अदबा, शुअरा और उलमा की कदरदानी का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि सर शेख अब्दुल कादिर 1942 से 1946 तक बगदाद अल जदीद हाई कोर्ट बहावलपुर के चीफ जस्टिस रहे। अबुल असर हफीज जलंधरी बतौर दरबारी शायर बहावलपुर में तवील अरसे मुलाजिम रहे। 1943 में नवाब सर सादिक की सरपरस्ती और सर अब्दुल कादिर की सदारत में सादिक एडजर्टन कॉलेज में ऑल इंडिया मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसकी 3 नशिस्तें मुनक्किद हुई, जिनमें बरसगील के तौलो अरसे नामवर शुअराए कराम ने शिरकत की। नवाब सर सादिक के मुताबिक दबीरुल मलक अलहाज अजीजुर रहमान अजीज ने पहली बार सराइकी के कादरुल कलाम सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह का कलाम दीवान फरीद तर्जमे और तशरीह के साथ 1942 में शाये किया। रियासत के तौलो अर्ज में मौजूद बुजुर्गान दीन और औलियाए किराम के मज़ारात की तामीर और मुरम्मत की गई। 1950 में सादिक एडजर्टन कॉलेज में आलमी साइंस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से साइंसदानों ने शिरकत की। इस मौके पर एक साइंसी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। 1942 में पैरा मेडिकल स्कूल, नर्सिंग स्कूल और LSMF क्लासेस का इजरा किया गया। इसी साल अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में रियासत में तालीमी इस्लाहात और निसाब को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के लिए कमीशन कायम किया गया। बहावलपुर में तरवीज इस्लाम का खसूसी ख्याल रखा जाता था। इसी हवाले से इस वक्त के हुक्मरान इस्लामी असूल और ज़वाबत पर सख्ती से कारबंद थे, बल्कि शहरियों को भी खसूसी मराहत देते थे। हज के मौके पर हाजियों को 3 माह की छुट्टी माह एडवांस तनख्वाह दी जाती। बहावलपुर हुकूमत की तरफ से मक्के और मदीने में सराय मौजूद थी, जहाँ बहावलपुर के हुज्जाज के लिए मुफ्त रिहाइश और खुराक का इंतजाम होता। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में तमाम मसाजिद में हुकूमत की तरफ से मुरम्मत और सफेदी करवाई जाती। इसी तरह हिंदुओं और सिखों को भी अपने मजहबी त्योहारों पर मुसलमानों की तरह मसावी हकूक हासिल थे। दौरान तालीम वफात पा जाने वाले मुलाजमीन की बीवाओं और नाबालिग बच्चों की कफालत के लिए पेंशन मुकर्रर की जाती। बहावलपुर और डेरा नवाब साहब में कायम यतीम खाने में मुफ्त रहाइश और खुराक के अलावा ज़हीन तलबा को वज़ाइफ भी दिए जाते। वाज़ेह रहे कि उर्दू और सराइकी के मारूफ शायर और अदीब प्रोफेसर अता मोहम्मद दिलशाद कालंचूरी, टेक्निकल हाई स्कूल के साबिक प्रिंसिपल अब्दुल कादिर जोहर और मुतादिद मशाहिर ने इसी यतीम खाने में परवरिश पाई। क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत करने वाले मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए खसूसी वजारत कायम करके मुहाजिरीन को रियासत बहावलपुर में बाइज्जत तरीके से आबाद किया गया। अलगरज रियासत बहावलपुर सही मानों में दारुस्सरूर थी। 1867 में महकमा सेहत की बुनियाद रखी गई और बरतानवी डॉक्टर मिस्टर डीन को इंचार्ज मुकर्रर किया गया, जिसकी निगरानी में पूरी रियासत में डिस्पेंसरीज कायम की गयी। नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारम के अहद तक चौक बाजार में एक मरकजी अकामती अस्पताल के अलावा 1906 में बहावल विक्टोरिया अस्पताल कायम किया गया, जिसके लिए बरतानवी हुकूमत ने खसूसी माली अमदाद फराहम की। मलका विक्टोरिया के दौरे इक्तदार की गोल्डन जुबली की यादगार के तौर पर
1892 में अंदरूनी शहर मुफ्त जुबली जनाना अस्पताल कायम किया गया जो आज भी मौजूद है। अलावाजी, बहावल नगर और अहमदपुर शर्किया में भी खवातीन के इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल कायम किए गए। यानी पूरी रियासत में अस्पतालों और डिस्पेंसरीज का ऐसा जाल बिछा दिया गया जहाँ न सिर्फ मुफ्त इलाज की सहूलतें फराहम की जाती बल्कि मरीजों को खुराक भी मुहैया की जाती थी। फिर यहाँ तैनात डॉक्टर्स, नर्सिस, डिस्पेंसर्स और हुकामा को मुल्क के दूसरे इलाकों की निस्बत बेहतर मुआवजा और मराहत दी जाती। तिब यूनानी की तरवीज के लिए रियासत के शहरों में मुतादिद शफाखाने भी कायम किए गए। मशहूर नावल निगार बुशरा रहमान के वालिद हकीम अब्दुल रशीद को इस मंसूबे का प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया। सर सादिक के दौर में शहर के तमाम तालीमी इदारों में तलबा का मुफ्त मुआयना किया जाता। इस्लामी रिवायात के अलम बरदार रियासत बहावलपुर में नंगे सर फिरना मायूब समझा जाता था। तुर्की टोपी दरबारी लिबास का अहम हिस्सा थी और सुर्ख या कलेजी रंग की तुर्की टोपी पहनने का रिवाज आम था। फौजी वर्दी के साथ खाकी रंग की तुर्की टोपी इस्तेमाल की जाती जिस पर रियासत का पेलिकन वाला सरकारी मोनोग्राम होता था। रिवायात की पाबंदी की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि वजीर आजम क्राफ्टन और कर्नल ड्रिंक भी जब नवाब साहब के सामने पेश होते तो तुर्की टोपी जरूर पहनते थे। क्राफ्टन की कार में तुर्की टोपी का डब्बा हर वक्त मौजूद रहता। वो जैसे ही सादिकगढ़ पैलेस में दाखिल होते फ्लैट हैट उतारकर तुर्की टोपी पहन लेते। तकसीम बर्र-ए-सगीर के वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू की तरफ से नवाब सर सादिक को खुसूसी ऑफर की गई कि वो अपनी रियासत का इल्हाक हिंदुस्तान से कर दें। तो नवाब साहब ने इस मौके पर यह तारीखी जुमला कहा कि मेरा सामने का दरवाजा पाकिस्तान और पिछला हिंदुस्तान में खुलता है और हर शरीफ आदमी अपने सामने के दरवाजे से आमदोरफ्त पसंद करता है। जबकि अगस्त 1947 में नवाब सर सादिक ने सबसे पहले रियासत बहावलपुर के पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया। रियासत के वज़ीर आज़म नवाब मुश्ताक अहमद गुरमानी ने पाकिस्तान के क़याम के सिर्फ 3 रोज बाद ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह मैदान में इस इल्हाक का बाकायदा ऐलान किया था। इस मौके पर सर सादिक ने अपनी फौज पाकिस्तान आर्मी में जम कर दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना बतौर गवर्नर जनरल हल्फ उठाने के लिए नवाब साहब की जाती रोल्स रॉयस कार में तकरीब में पहुंचे। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क का खजाना खाली था तो इस मुश्किल घड़ी में नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने इब्तदाई तौर पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 7 करोड़ और दीगर अखराजात के लिए 2 करोड़ रुपए के साथ 22,000 टन गंदम और मुहाजिरीन के लिए खसूसी तौर पर 5 लाख की खतीर रकम फराहम की। 5 अक्टूबर 1947 को कायद-ए-आज़म ने रियासत बहावलपुर के पाकिस्तान से इल्हाक के मुआहिदे के दस्तावेज पर 5 अक्टूबर 1947 को दस्तखत सबत किए। इस तरह बहावलपुर को पाकिस्तान में शामिल होने वाली सबसे पहली रियासत का एजाज हासिल हुआ। 1727 में कायम होने वाली रियासत बहावलपुर हर दौर में और हर एतबार से इस्लामी तहजीब व तमद्दन का नमूना थी। रियासत के बशिंदों के दरमियान बिला तखसीस रंगो नस्ल और मजहब रवादारी का रिश्ता कायम था। नीज दीगर मजाहिब के मानने वालों को भी इस्लाम के असूलों के ऐन मुताबिक पूरी मजहबी आज़ादी हासिल थी। गोया भाईचारा, मजहबी रवादारी और अमनो अमान इस इस्लामी रियासत का खासा थे। इसी मजहबी रवादारी के पेश नजर मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले गैर मुस्लिम खानदान में रियासत में आकर न सिर्फ आबाद हुए बल्कि आसूदा हाल जिंदगियां गुजारते थे। मजहबी तकरीबात और त्योहारों में एक दूसरे के एहतराम को मलहूज़ खातिर रखा जाता। जिस तरह मुसलमान मुलाजमीन को हज के मौके पर छुट्टी और पेश की तनख्वाह दी जाती, इसी तरह हिंदुओं और सिखों को भी इनके त्योहारों के मौके पर बाकायदा छुट्टी और पेश की तनख्वाह दी जाती थी। नवाब सर सादिक के अहद में मुसलमानों के मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान कभी कोई तनाज़े देखने में नहीं आया। अलगरज नवाब सर सादिक का बहावलपुर एक ऐसा खित्ता उल्फत था जहाँ हर सू अमन का दौर दौरा था। बाशिंदगान रियासत एक दूसरे का एहतराम करते। इस खित्ते में एक ऐसी मुकम्मल इस्लामी रियासत मौजूद थी जो दीगर मजाहिब के मानने वालों को भी इस्लाम के असूलों के ऐन मुताबिक पूरी मजहबी आज़ादी अता करती थी। नवाब सर सादिक का इंतकाल 24 मई 1966 को लंदन सिरे काउंटी में हुआ। जब इनका जस्ते खाकी पाकिस्तान लाया गया तो हर आंख अश्कबार थी। डेरा नवाब साहब की ईदगाह में खतीब रियासत हजरत काजी अजीमुद्दीन अलवी रहमतुल्लाह ने नमाज जनाजा पढ़ाई और मैयत को 21 तोपों की सलामी के बाद पूरे फौजी और सरकारी एजाज के साथ किला डेर में शाही कब्रिस्तान के अंदर मकबरा नवाबीन में स्पर्दे खाक किया गया। नाज़रीन, आज की ये वीडियो पाकिस्तान के खूबसूरत शहर बहावलपुर और वहाँ के नवाबों की खिदमात के बारे में थी। अगर आप किसी शहर की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को दोस्तों से शेयर करें और एक्सप्लोर फैक्ट को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।